Good evening all. I Soumya of class 11th A And I, Anvi of class 11th B, are delighted to lead you through this felicitation ceremony honoring the remarkable accomplishments of our fellow Donites. Before we begin, we kindly request our esteemed Dean Sir, our respected Director Principal Ma'am, and our Honorable Principal Ma'am to graciously escort the chief guest, members of Managing Committee, and our valued donors to the stage to grace the occasion with their presence. it's an honor and privilege to welcome you all to the prize distribution ceremony. We all are present here to acknowledge the hard work, consistency, and enthusiasm of those who believe whatever you want to do, you have to love it, you have to sacrifice for it, and above all, you have to work for it in the right direction. Awards and recognition are essential in a student's life, celebrating achievements while inspiring growth and motivation. They boost confidence, encourage excellence, and instills values like hard work and perseverance, shaping students into confident individuals ready to face future challenges. We request our worthy chief guest, Shri Shekhar Chandra and Brigadier Babarwal, member of the Managing Committee, to bestow the first set of running trophies. We request if there is any other donor, kindly be on the stage. We request our worthy chief guest, Shri Shekhar Chandra and Brigadier Babarwal, member of the Managing Committee, to bestow the first set of running trophies. The first two trophies are donated by Mrs. Swaran Anand. Srimati Shanti Devi Sudan Memorial Trophy for the best student in nursery section goes to our little bud Sanvi Chandel of UKGA. Please give a huge round of applause for our little stars. I request you, sirs, to present this prestigious award to our little champ, and I request our honorable donor to kindly join them. Please give a huge round of applause for our little star. Next up, we honor an outstanding young mind. Captain K.L. Sudan Memorial Trophy for the best student in primary section goes to Pancham Sharma, student of class 5th A. I request you, sirs, to present this award and our esteemed donor to kindly join them. Let's give a thunderous round of applause for our champ. Congratulations, Pancham. शबा थोड़ी ही हो बेशक अंधेरों को Thank you, ma'am. जलाना होगा। महफिल के अंदाज को देखना है तो इसे जोरदार तालियों से सजाना होगा, जोरदार तालियों से सजाना होगा। For demonstrating exceptional dedication in the middle section, Srimati and Shri Balwant Singh Sachdev Memorial Trophy for the best student in middle section donated by Lieutenant General H.J.S. Sachdev, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal is presented to Vritika Sharma, student of class 7th B. I request our honorable chief guest to do the honors and the donor to kindly accompany them. The clapping should not stop. Please give a huge round of applause. Recognizing brilliance, Srimati Madhuri Mathur Memorial Trophy for the best student in secondary and senior secondary section donated by Mrs. Preeti Mathur is awarded to Atulya Rai, student of class 10C. I request you, sirs, to kindly felicitate the recipient. Please put your hands together to celebrate the remarkable success of a young achiever. Congratulations, Atulya. हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, हवाओं के भरोसे पतंग उड़ा करती है। For excelling in mathematics, Srimati and Shri Gopal Das Arora Memorial Trophy for the best student in mathematics donated by Mr. Himanshu Arora is presented to Mayank Sandhoya, student of class 10th C. I request you, sirs, to kindly do the honors
and our respected donor to kindly join them. Chief guest sir, kindly do the honors. Please give a huge round of applause. It's now time to present Shri Narayan Dutt Sharma Memorial Trophy for the Best Student in Science, donated by Mrs. Anjula Sharma, which goes to Harshali Sharma, student of class 12th B. I humbly request you, sir, to kindly present the award. The chief guest is requested. Colonel Joe Dhillon is requested to present the award. The applause shall not stop. Please give a huge round of applause for our science champ. Recognizing innovation and mastery in technology, the Computer Wizard Trophy, donated by Lieutenant General H.J.S. Sachdev, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, goes to Vaishnavi Chaudhary, student of class 9th B. May I request you, sirs, to kindly present this award. I also request Mrs. Vandana Sachdev to accompany them. Please give a huge round of applause. The sound of your cheering shall not stop. For showcasing creativity and skill in PowerPoint presentations, Srimati Seema Jain Memorial Trophy for the Best PowerPoint Presentation, donated by Mr. Sanjay Jain, goes to Vaishnavi Singh, student of 10th B. Sir, kindly felicitate the recipient. Congratulations, Vaishnavi. Kindly applaud. For a passion of reading and a love for books, Srimati. For a passion of reading and love for books, Srimati Siddharth Memorial Trophy for the avid reader, donated by Mr. Pankaj Yogi, goes to Gauri Agarwal, student of class 8A. I request Brigadier Babbarwal sir to kindly present this award along with the chief guest. Please give a huge round of applause for our book lover. Celebrating artistic brilliance, Shri Hari Shankar Saxena and Srimati Kusum Lata Memorial Trophy for the Best Student in Drawing and Painting, donated by Mrs. Hema Saxena, is awarded to Pratyush Rachoya of 10th A. So, kindly present the award and the donor is requested to join them. Mrs. Babawal, kindly accompany them. Ladies and gentlemen, the sound of applause shall not stop. With a little energy, please. Congratulations, Pratyush. The next in line is Shri B.K. Razdan Memorial Trophy for the Best Student in Craft, donated by Mrs. Rajni Rawal, which goes to Saksham, student of class 8C. I would like to request our Honorable Chief Guest to kindly present this award and our respected donor to accompany them. Congratulations, Saksham. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for our star. शाम इतनी सुहानी है तो तालियों में कमी क्यों? तालियां, जोरदार तालियां बजनी चाहिए. For captivating performances and grace in dance, Shri O.R. Gulati Trophy for the Best Student in Dance, donated by Shri O.R. Gulati, goes to Lavanya Vashisht, student of class 10C. I request you, sirs, to kindly present the award to the winner and the donor is requested to join them. A thunderous round of applause. Congratulations, Lavanya. For musical excellence and talent, Srimati Pushpavati Khanna Memorial Trophy for the Best Instrumentalist, donated by Mrs. Betty Nangia, is awarded to Manik Malhotra, student of class 9B.
I request Mrs. Vandana Sachdev to kindly present this award along with our honorable chief guest. Please give a huge round of applause. बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं हो सकता, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं हो सकता। The Best Vocalist Samyak Sansthan Trophy, donated by architect Rahul Jindal, is awarded to Yatika Sharma of 9C. I request you, sirs, to kindly present the award. I request Mamta Chaudhary ma'am to kindly accompany our chief guest. Please put your hands together for our achiever. The next 3 trophies are donated by Captain Sanjay Anand, Sena Medal. First comes the Best Student in Debate trophy for primary section, which goes to Anaisha Sharma of 3rd B from Freedom House. I request our chief guest sir to kindly do the honors. Please give a huge round of applause. Congratulations, Anaisha. The next in line is Best Student in Debate trophy for the middle section, which goes to Kritika Garg of 6th B from Forward House and Aradhya of 7th B from Unity House. Congratulations, Kritika and Aradhya. Ladies and gentlemen, the applause shall not stop. इनके लिए एक ही ख्याल मन में आता है, गिरते शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। The applause should not stop, ladies and gentlemen. Please give them a huge round of applause. Now, the Best Student in Debate trophy for secondary and senior secondary section goes to Aditya Sharma of 11th C and Ananya of 10th A from Unity House. I request Chief Guest Sir and Dean Sir to kindly present this award. Please give a huge round of applause, ladies and gentlemen. These are the best debaters of our school. Please cheer for them. Congratulations, Aditya and Ananya. The next 2 trophies are donated by Mamik sisters in the memory of their beloved brother. For poetic fluency, our next award is Colonel T.S. Mamik Memorial Trophy for poem recitation competition in primary section, donated by Ms. Charanjit Kaur Mamik, which goes to Navya, student of 2nd A, and Avyukt Kumar Sinha, student of 4th B from Forward House. I request sirs to present this award and Mrs. Swarn Anand to kindly accompany them. Let's give a thunderous round of applause to celebrate the incredible spirit of our achievers. Next in line is Colonel T.S. Mamik Memorial Trophy for storytelling competition in primary section, donated by Ms. Mohanjit Kaur Mamik, which goes to Navya, student of 2nd A from Forward House, Arav Bhatt, student of 2nd B from Freedom House, and Ishana Sharma, student of 4th A from Unity House. I humbly request you, sir and ma'am, to kindly present this award to our winner. Congratulations, our little buds. Please give a huge round of applause for our little stars. खुशी और गम में होते हैं अलग अलग लहजे, तालियां बरसती रही तो महफिल के अंदाज बदलते हैं, महफिल के अंदाज बदलते हैं। For exceptional public speaking skills, Shrimati Indra Devi Memorial Trophy for the Best Student in Declamation in Primary Section, donated by Mr. Arun Gupta, is awarded to Tavish Garg of 4th B from Peace House. I repeat, for exceptional public speaking skills, Shrimati Indra Devi Memorial Trophy for the Best Student in Declamation in Primary Section, donated by Mr. Arun Gupta, is awarded to Tavish Garg of 4th B from Peace House. Congratulations, Tavish. I request sirs to kindly do the honors. Ma'am, kindly accompany them. Dear audience, the applause shall be louder.
The next two trophies are donated by Mrs. Renu Taneja in the memory of her parents. Recognizing oratory brilliance, Srimati Kundan Khanna Memorial Trophy for the best student in declamation in middle section goes to Himanshi Dugal, student of 7th A from Freedom House. I request Mr. Brigadier Agarwal to kindly felicitate the winner, along with our respected chief guest. The next trophy is Shri Kundan Khanna Memorial Trophy for the best student in declamation in secondary section, which goes to Dhanya Kaushik, student of 12th C from Peace House. Sir, kindly felicitate the recipient. A thunderous round of applause. Congratulations, Dhanya. For excellence in oratory skills, Srimati and Shri V.K. Rishi Memorial Trophy for the best orator donated by Mrs. Ekta Dhawan goes to R.V. Khanna of 10th C. I request Brigadier Agarwal to kindly felicitate this trophy to our winner. I also request the donor to kindly join them. आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों से महफिल में अपनी मौजूदगी तो दिखाइए. Next in line is Shri A.S. Anand Memorial Trophy donated by Captain Sanjay Anand Sena Medal for the best sportsperson of the year, which goes to Krishna Jayaprakash Raj of 9th A. I request you, sirs, to kindly present this trophy. Also, Mrs. Swarn Anand is requested to accompany them. Congratulations, Krishna. Please give a huge round of applause for our athletic champ. For embodying the spirit of an all-rounder with outstanding achievements, Major Sandeep Shankla Ashok Chakra Memorial Trophy for the all-rounder student donated by Lieutenant Colonel J.S. Kanwar and Mrs. Manju Kanwar goes to Dhanya Kaushik of 12th C. I request Brigadier Babbarwal sir and Mrs. Babbarwal to kindly felicitate our all-rounder. It's sad to announce that Lieutenant Colonel J.S. Kanwar left us for his heavenly abode a few days ago, and we are missing his presence here. May the departed soul rest in peace. Let's take a moment to appreciate the incredible efforts, dedication and sportsmanship shown by the Donites. These competitions are not just about winning, they are about pushing ourselves to our limits and working as a team. I request Mrs. Vandana Sachdev to kindly present the next set of awards. The next two trophies are donated by Axis Bank Panchkula. Our first trophy in the Inter-House Sports category is Inter-House Basketball Senior Boys Axis Bank Trophy, which goes to Peace House. I would like to call Peace House Senior Boys Basketball Team Captain Shashwat Jindal on the stage along with the team. I request the donor to kindly join Mrs. Sachdev and the manager of Axis Bank to felicitate the winning team. Please give a huge round of applause for our winners. Victory is not merely about being the first to cross the finish line or lifting a trophy. It's about the journey, facing challenges head on, learning from setbacks and striving for excellence with integrity. जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसके ही आगे सिर झुकाती है, उसके ही आगे सिर झुकाती है. The next in line is Inter-House Basketball Senior Girls Axis Bank Trophy, which goes to Freedom House. I would like to call upon Freedom House Senior Girls Basketball Team Captain Tamanna on the stage along with the team. I request the donor to kindly accompany them. Also, the manager is requested to felicitate the winners. Please put your hands together and cheer for our winners. A trophy may symbolize the achievement of a goal, but the true essence of success lies in the effort, perseverance, and teamwork it took to get there.
Each step of the journey, each lesson learned, and every ounce of determination is what makes the victory truly worthwhile. Congratulations, team. Please give a huge round of applause for our winners. The next 4 trophies are Srimati Veena Rai Memorial Trophies donated by Shri Sarvajit Rai. The Inter-House Badminton Junior Girls Trophy goes to Navya Sachdeva of class 8th A from Forward House. Congratulations, Navya. The next in line is Inter-House Badminton Senior Girls Trophy, which goes to Hansika Garg of 12th C from Unity House. Please give a huge round of applause for Hansika. Next up is the Inter-House Badminton Junior Boys Trophy, which goes to Yashvardhan of 7th B from Peace House. The next trophy is Inter-House Badminton Senior Boys Trophy, which goes to Pratyush Rachoya of 10th A from Forward House. Congratulations, Pratyush. The sound of applause shall not stop, ladies and gentlemen. पूरा साल ये बच्चे मेहनत करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, तो आज इनका मनोबल जरूर बढ़ाइए तालियों के साथ। Our next 4 trophies are C.K. Manglani Memorial Trophies donated by Shinaval Manglani. I request Lieutenant Colonel Sachdev Sir to present the next set of trophies and the donor to kindly accompany him. The Inter-House Table Tennis Junior Girls Trophy goes to Navyana of 5th A from Forward House. I repeat, the Inter-House Table Tennis Junior Girls Trophy goes to Navyana of 5th A from Forward House. A thunderous round of applause for our little champ. Congratulations, Navyana. Next in line is Inter-House Table Tennis Junior Boys Trophy, which goes to Gurasheesh Singh of 5th B from Forward House. Congratulations, Gurasheesh. The Inter-House Table Tennis Senior Boys Trophy goes to Arav Rai of 8th A from Peace House. I repeat, the Inter-House Table Tennis Senior Boys Trophy goes to Arav Rai of 8th A from Peace House. Congratulations, Arav. A thunderous round of applause for Arav. इन नन्हे फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है, डियर ऑडियंस। Next is Inter-House Table Tennis Senior Girls Trophy, which goes to Kanupriya Thakur of 8th A from Peace House. Congratulations, Kanupriya. A thunderous round of applause for Kanupriya, ladies and gentlemen. Dear audience, please give a huge round of applause for our winner. Our next trophy is Mrs. Sudarshan Malik Memorial Trophy for the best house in co-curricular activities for the session 2024-25, which goes to Forward House. I would like to call upon the house captain and vice captain of Forward House to come along with their house in charge, Mrs. Alka Tandon, on the stage and receive the trophy. I request our honorable chief guest to kindly present this award, along with our honorable dean sir. Please put your hands together to uplift the spirits of the winning house. Recognize and honor the dedication of our supporting staff. I request Mrs. Swarn Anand to kindly present this prestigious award to Mrs. Maya Devi. Her hard work and commitment have been phenomenal. Please give a huge round of applause for her. The partnership between parents and the school is essential in holistic development and shaping the future of the child. To honor this invaluable collaboration, the school has instituted Shri Amarnath Sachdeva Memorial Trophy for the best parent. I request you, ma'am, to felicitate Mrs. and Mr. Saurabh Gupta, parents of Ananya Gupta of class 9th A. Also,
I request Director Principal Ma'am, the donor of this prestigious award, to kindly join them. Ma'am and sir, please come forward to receive this recognition. A huge round of applause for Mrs. and Mr. Saurabh Gupta. सभी स्टेक होल्डर्स का एक रोल होता है स्कूल के फंक्शनिंग में एंड वी रियली रिकॉग्नाइज दिस. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. We are truly honored to call ourselves Dunites. The vision of our school is to create a generation that would be responsible, knowledgeable, empathetic, caring and confident while also embodying integrity and serenity, not forgetting our roots. And we all are proud to carry these values with us throughout our lives. Once a Dunite, always a Dunite. I request the chairperson of Doon Public School Education Society, Mrs. Swan Anand, Brigadier Babarwal, and Dean Sir to kindly felicitate the chief guest with a token of gratitude. A huge round of applause for our distinguished guests. I would also like to call Hansika of class 12th C from Doon Art Club on the stage, who has made this beautiful artwork for our honorable chief guest. Beautiful and mesmerizing painting by Hansika, student of class 12th C. I humbly call our chief guest, Mr. Shekhar Chandra, Regional Officer of Panchkula, to kindly bless us with his words of wisdom. A huge round of applause for all our worthy guests who are sitting here with us, and we welcome you, sir. Good evening. Namaskar. नमस्कार. मैं इसलिए नमस्कार 2 बार बोल रहा हूँ या गुड इवनिंग पहले बोला कि नमस्कार कहने के लिए मैं हर बार जहाँ भी बोलने का मौका मिलता है मुझे, मैं ये बात ज़रूर बोलता हूँ, नमस्कार करने के लिए हमें घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो सभी को पुनः एक बार नमस्कार. और इस शाम की बहुत वंडरफुल गैदरिंग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ. बड़ा हॉल, बड़ा अच्छा स्कूल, बड़े अच्छे ऑडियंस, बड़ी अच्छी हमारे यहाँ पर डायस पे लोग हैं, और सभी हमारा विद्यालय जो है, मैं यहाँ पहली बार इस विद्यालय में आ रहा हूँ. तो पहले तो रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन जो इस विद्यालय की हैं, डीन यहाँ के दी कैप्टन साहब, डायरेक्टर प्रिंसिपल मैडम, और जो डिफेंस के सारे स्टालवार्ट यहाँ पर गैलेक्सी ऑफ डिफेंस स्टालवार्ट्स में यहाँ देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया आप लोगों ने, और 2 शब्द जो है बोलने के लिए भी कहा है. तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास इतना ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लोग आप जानते नहीं हैं, और मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं समझता अपने आप को कि मैं आप लोगों को कोई बहुत बड़ा व्याख्यान यहाँ पर देने वाला हूँ. बस ये ज़रूर है कि मुझे आज अधिकृत किया गया है आप लोगों ने, कैप्टन साहब ने, मैडम प्रिंसिपल ने, कि यहाँ पे आएँ और कुछ सब कहें. तो ज़रूर कुछ बोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलने वाला हूँ कि जिससे आपको बोरियत होने वाली है, और कोई ऐसी चीज़ मैं कोई लेक्चर यहाँ पर देने वाला नहीं हूँ जिससे कि आप सोचोगे ये रोज़ हम क्लास में सुनते हैं, बच्चों को कह रहा हूँ, और टीचर को सोच रहा हूँ रोज़ देना पड़ता है. तो ऐसी कोई फील आपको शायद नहीं आएगा. मैं 2-4 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, और शायद आप सभी लोग उससे इत्तेफाक रखेंगे. मुझे भगवान की कृपा से इस तरह की गैदरिंग और मीटिंग्स
ये ऑडियंसेस फेस करने का मौका भगवान मुझे देता रहता है। मैं अभी कम से कम पंचकुला आने के बाद 5-6 गैदरिंग इस तरह की कर चुका हूँ। ऐसे ही अपने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ। और कल भी मेरा एक दूसरे आप ही के इधर पंचकुला के स्कूल में मेरा फंक्शन लगा हुआ है। तो कई बार तो मैं भी ये जो बोलने के लिए मेरे पास कमी पड़ने लगती है, तो मैं ढूंढता हूँ कि क्या बोला जाए, जाके क्या कहा जाए। रोज़ वही बात होती है। तो बच्चों के साथ इस तरह जुड़ा जाए या पेरेंट के साथ इस तरह जुड़ा जाए कि जो उनको लगे कि कुछ डिफरेंट हो पाया। कोशिश करूँगा, हो सकता है कहीं पर रिपीटिशन हो, कहीं पर कुछ हो, कहीं पर आपने सुना हुआ हो, बट बात ज़रूर मैं आपको कहूँगा। देखिए, ये जो गैदरिंग है ये बहुत अगस्त गैदरिंग है और सब पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जितने हमारे टीचर्स यहाँ पर हैं और प्यारे बच्चे और इस विद्यालय के सारे स्टाफ और जिनको मैं संबोधन नहीं कर पाया वो सभी लोग, मैं सब उनको पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ कि मैं यहाँ पर आ पाया। देखिए, जहाँ पर किसी वक्ता के लिए बात होती है कि वो क्या बोले, तो मैं तो समझता हूँ कि अगर बच्चों के सामने बोलने का मौका मिल गया तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं सीबीएसई में जब से मैंने एक लोअर क्लास पर ज्वाइन किया था, मैंने बी ग्रेड क्लास में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद 8-10 साल बाद मुझे बाहर जाने का भी मौका मिला कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, जल्दी से बड़ा अफसर बन जाऊं। तो मुझे एक चीज़ सीबीएसई में ऐसा बात के रखी कि जो मुझे बार बार मेरे को रोकती थी कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज़ इन दी सीबीएसई इटसेल्फ। और सीबीएसई एक ऐसी व्यवस्था है जो आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अगर कुछ कर पाते हैं तो इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं जब कभी भी बात करता हूं कि हमारे स्कूलों के बारे में और अपने टीचर्स के बारे में, तो मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूं कि आप सबसे बड़ी सेवा देश के लिए कह रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि मैं यहाँ पर गैलेक्सी ऑफ हमारे डिफेंस स्टालवार्ड की देख रहा हूँ और वो उन्होंने देश की सेवा एक बार कर चुके हैं, बहुत अच्छे से देख के इसकी सेवा कर चुके हैं। सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, देश के लिए हाईएस्ट बलिदान दे रखा है। उनकी यहाँ पर अभी यादें यहाँ पर दिलाई गई हैं, सबको याद किया गया है, कितना अच्छा लगता है। तो मैं आप सबको मैं भी एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं भी अपने आप को एक सामाजिक सोल्जर मानता हूँ। मैं समाज का सिपाही हूँ। मैंने अपनी जो जॉब ले रखी है या मैं अपनी जो सर्विस कर रहा हूँ, मैं समाज के सिपाही के तौर पर अपने आप को रखा हुआ है। तो मैं ये आश्वासन आप लोगों को देता हूँ, जिस तरह से आपने देश सेवा की है, अब आप समाज सेवा में लगे हैं और हमारा प्रयास भी इसी तरह से रहेगा कि समाज निर्माण में किस तरह से अच्छी भागीदारी हो सकती है, उसके लिए हम मिलजुल के काम करेंगे और उसी के साथ हम देश सेवा में लगे रहेंगे। बच्चों के बारे में बोला जाता है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, देश का निर्माता हैं, सब कुछ कहा जाता है। अभी मैं कार्ड देख रहा था, मेरे पास जो इनविटेशन कार्ड था उसमें बर्ड्स एंड ब्लूम्स नाम दिया हुआ है। इन्होंने किंडरगार्टन का जो है अपनी यूनिट का, उसका कार्ड में मैंने देखा। और ये बर्ड्स एंड ब्लूम वाला जो है मेरे ना बिल्कुल हार्ट में बसा हुआ है ये सब्जेक्ट। और मैं आपको बताऊंगा सभी पेरेंट्स को, ये बच्चे जो है ना संसार का सबसे प्रीशियस गिफ्ट अगर इस ज़मीन पर कहा जाए, इस माँ धरती पर कहा जाए, तो बच्चे संसार के सबसे प्रीशियस गिफ्ट हैं। अब बात आती है इस गिफ्ट को, जो प्रीशियस गिफ्ट होता है उसको हम कैसे संभालते हैं। बहुत बड़ा लॉकर रखते हैं, आजकल तो डिजिटाइज लॉकर है, उसमें लॉकर में रखते हैं जो हमारा प्रीशियस गिफ्ट होता है। तो उसको अब ये बच्चों को कैसे संभाला जाए, ये तो उनसे भी बड़ा प्रीशियस गिफ्ट है। अब इस गिफ्ट को कैसे संभाला जाए, वो आज की डेट का हमारे लिए सबके लिए चैलेंज है। मैं समझता हूँ आप सभी इससे एग्री करेंगे कि ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारी व्यवस्था सब इसी चिंता में लगी हुई है कि बच्चों को कैसे इनका बचपन छीनते हुए इनको कैसे सजोया जाए। अगर आप देखेंगे, मैं जो बात कहने वाला हूँ आप समझ जाएंगे। अभी हम एक तरफ ये बात तो करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है
उसी के लिए हम लोग सारे कार्यरत हैं। रोल ओवर हो चुकी है और उसकी असेसमेंट की फाइनल प्लानिंग चल रही है। किस तरह से असेसमेंट होना है, पेडागोजी पे काम हो चुका है, करिकुलम पे काम हो चुका है, ट्रेनिंग चल रही है। असेसमेंट कैसे होनी है उस पर भी मंथन चल रहा है भारत सरकार के लेवल पे। वो अगले साल हो सकता है जब भी आएगा, बट आई एम नॉट ऑथराइज टू डिक्लेयर एनीथिंग ऑन दैट, बट प्रयासरत है। क्या हमारे लिए ये विषय एक सेटिस्फैक्शन का नहीं है कि आप लोग अगर एजुकेशन के बारे में जानते हैं, और जो डायस पे बैठे हैं वो तो सब जानते ही हैं, टीचर भी जानते हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले भारत सरकार में या हमारी एक व्यवस्था थी जो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए एक हमारी स्कीम चली थी। उस समय भारत में ये हम कहते थे कि सबको शिक्षा मिले, और आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं कि किस तरह से हम क्वालिटी एजुकेशन दें, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वालिफिकेशन हम बच्चों को कैसे दें। तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने पार किया है। हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग तक हम कैसे बच्चा करके सीखे। बच्चे को पढ़ाने की बात नहीं हो रही है, आज करके सिखाने की बात हो रही है। तो ये करके सिखाने के लिए क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, और जहाँ तक ये हमारे को एक संसाधन के रूप में तो हेल्प कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज हमारे सामने ज़रूर ला रहे हैं कि इस चैलेंज को हमने कैसे बच्चों को इसकी उपयोगिता बतानी है, या डिजिटल इन्फॉर्मेशन और डिजिटल एज में बच्चों को कैसे पढ़ाई का लाभ देते हुए उनको जो उसके कनकमिटेंट्स हैं उनसे कैसे बचा के रखना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी आ चुकी है, ये हम सब जानते हैं। पहले वाला हमारा देश नहीं रहा कि गरीबों का देश है, वो आज नहीं है। थर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग, फिफ्थ इकोनॉमी पर आ चुका है देश। तो हमारे समाज में प्रॉस्पेरिटी आ चुकी है। हम लोग इतने बढ़िया विद्यालय देख रहे हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था हम देख रहे हैं, अच्छे अच्छे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। अब इस व्यवस्था पर आने के साथ हमारी क्या चीज़ है, जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो गैप क्या है? प्रॉस्पेरिटी आने से हमारे बीच में एक होड़ तो जरूर लग गई है कि मेरे पास घर में ये होना चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा मकान होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो भौतिक सुविधाएं हम लोग देख रहे हैं या उपभोग करने की बात कर रहे हैं, ये जो अबेंडेंस ऑफ वेल्थ है, क्या हमारे बच्चों में अबेंडेंस ऑफ वेल्थ की वजह से जो बच्चों को हम इतना वैर विदल उनको दे रहे हैं, क्या उतना ही हमें ज्ञान है कि हम अपनी लिगेसी या हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, उसको भी बच्चों में इम्बाइब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये जो अबेंडेंस ऑफ वेल्थ है, इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है। उसी पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम सभी व्यवस्थाएं अच्छी कर रही हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति को अगर पीछे छूट रही है तो उसमें बड़ा रोल हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, आप समझ जाएंगे। कहीं पे मैं पढ़ रहा था, और ये कहानी मेरे को कैसे मिली कि मैं कहीं जा रहा था, ऐसे ही स्कूल फंक्शन में जा रहा था, तो मुझे नॉर्मली मैं जब स्कूल का टॉपिक देख लेता हूँ कि क्या है, उस पर जाके शाम को बोलने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार मैं पिछले साल हैदराबाद में था, वहाँ तेलंगाना में, और उसमें मेरा विजिट लगता रहता था। तो तेलंगाना, मुझे विजयवाड़ा से तेलंगाना जाना था, तो मुझे शाम को ऐसे ही फंक्शन में जाना था। तो मैं ये सोचा कि अब क्या बोलेंगे, आज के लिए कुछ बोल देते। उनका मैंने कार्ड देखा, उनकी गाड़ी मेरे पास उन्होंने ही भेज रखी थी हैदराबाद से। तो उनकी गाड़ी के एक पीछे सीट पे एक मैगजीन रखी हुई थी स्कूल की। तो मैं उस स्कूल के पढ़ रहा था, एक बहुत बढ़िया उसमें स्टोरी, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और मैं उसको हर फंक्शन में कोशिश करता हूँ कि उसको बोला जाए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उससे एक मैसेज जरूर जाता है। उसमें राइटर लिखता है कि वो एक किसी स्कूल में गया या कहीं पर गया क्लास में बच्चों के, और बच्चों से उसने पूछना शुरू किया, जैसे कि हम लोग सभी की क्यूरोसिटी रहती है कि भाई बच्चे आप क्या करोगे, बड़े बन के क्या बनना चाहोगे, क्या आपका व्यवहार है, कैसा है, सब कुछ।
तो राइटर साहब ने सभी बच्चों को एक एक करके बुलाया। अब बच्चे कोई बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, जो एक पहला क्वेश्चन हमारे मोस्टली हम लोग जो जानते हैं, तो पहले तो वही आया, डॉक्टर इंजीनियर बनना है जी। फिर उसके बाद IAS PCS के लिए तैयारी करेंगे जी। फिर उसके बाद आजकल की नए कनोटेशंस में कहें तो लॉयर का आ गया, CA का आ गया, ICWA का आ गया, CS का आ गया, सब आया। बच्चों से सबसे पूछ के एक बच्चा थोड़ा सा संकोच में बैठा हुआ वो आया, तो उससे पूछा गया, बच्चा आप क्या बनना चाह रहे हैं, और आप थोड़ा सा बड़े संकोच में लग रहे हैं। तो बड़े पूछने के बाद उसने बताया, सर मैं तो मोबाइल बनना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं सभी लोग, बच्चे ने कहा कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। अब राइटर साहब बड़े परेशान, स्टोरी टेलर जो थे, स्टोरी राइटर, उन्होंने कहा मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने लाइफ में क्या बनना है, तुम तो गजट की बात कर रहे हो बेटा, तो ये आप सही में मोबाइल? कहते हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। आप बताइए, उस बच्चे ने इतना बड़ा क्वेश्चन राइटर के ऊपर रख दिया। अब मैं यही क्वेश्चन आप सारे पेरेंट के ऊपर डालना चाहता हूँ कि बच्चे ने क्यों कहा होगा, और हम सभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई ऑल्सो फेल्ड इन दैट, सभी लोग फेल होने वाले हैं कि बच्चे ने क्यों बोला होगा कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। क्या किसी के पास आंसर है? जोर से कोई बोल सकता है? आवाज़ इधर से तो नहीं आ रही, इधर से आएगी? नहीं आएगी। आंसर हम सभी फेल होंगे इसमें। जी बताएं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इनके लिए अप्लॉज कर दीजिए, ये बिल्कुल नज़दीक में है उसके। अच्छा, और किसी का है तो उनको माइक दे के जरा बता दीजिए, पेरेंट में कोई है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वैसे लेक्चर नहीं देने वाला इधर, मैं बिल्कुल इस तरह से ही बात करूंगा। चलिए, अगर हमारी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही कोई बात नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हेलो, मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी बताएं बताएं प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर अमित चावला है। मोबाइल में जो आपने क्वेश्चन रेज करा बड़ा अच्छा है। हम लोग मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बहुत बढ़िया, आप डॉक्टर साहब है ना, इसीलिए तो पहुंच गए सही जगह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं ये प्लेटफॉर्म पर भी बोल रहा हूं और यहाँ मैं समझता हूं कोई इस तरह से अदरवाइज ना लिया जाए। मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, उसका बिल्कुल उपयोग के लिए हूं। लेकिन उपयोग और उपभोग ये दो चीज़ें हैं, उसको किस लेवल पर हमने ले जाना ये पेरेंट और टीचर का काम है। वही मैं टीचर्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और पेरेंट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें उनके पास जवाब आया, जी मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। अब उन्होंने पूछा, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आया कि क्यों बनना चाहते हो, लेकिन बच्चे ने क्या बताया बताएं, वो डॉक्टर साहब और ये मैडम कुछ क्लोज चले गई उसके आंसर के जवाब में। उसने कहा, सर मुझे जो है अपने मम्मी पापा के पास बैठने का मौका मिलेगा, मुझे कम से कम दिन में 7 या 8 घंटे मैं अपनी मम्मी पापा के पास बैठ सकता हूँ, मुझे एक ऐसा टाइम मिल सकता है जहाँ मैं अपनी मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ। देखिए, अब उस बच्चे की अगुनी को अगर आप थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हम कुछ एनीथिंग, आर वी स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट टेक्नोलॉजी? नो, आई एम ट्राइंग टू स्पीक अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन, यंग जनरेशन। ये जो जेनजीज है ना, अभी तो अल्फा की बात हो रही है, जनरेशन जेड में है अभी ये बच्चे जो हैं, अब आगे आ रहा है अल्फा। तो कहाँ इन बच्चों को हम कैसे डील करना, ये आज का चैलेंज है। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे 7-8 घंटे या 4 घंटे मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ सकता हूँ, मैं अपनी बातें कर सकता हूँ। ये उसकी अग्नि है, उस अग्नि को समझिए। तो ये मेरा पेरेंट्स है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो ये मेरा आपसे गुजारिश है, एक क्वालिटी टाइम, इसका क्रक्स है कि आप पूरा टाइम नहीं दे सकते। आज का ज़माना डिंग का है, डबल इनकम ग्रुप का है, तो सभी लोग, मम्मी भी पापा भी, सब लोग सर्विस में जाते हैं। नेचुरली उतना टाइम हम नहीं दे सकते, लेकिन कुछ आइडेंटिफाई कर लीजिए। किसी ऑथर ने कहा है, साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, आप यू आइडेंटिफाई द टाइम व्हेन यू कैन अटैच विद योर चाइल्ड। सुबह उठते समय बच्चे के सर में उसके हाथ फेरते हुए बच्चे को उठाइए। क्या कोई पेरेंट मुझे ये बता सकता है, यहाँ पे स्कूल जाना है बच्चे ने, अब छोटा बच्चा है, हम कहते हैं स्कूल जाना है, स्कूल हमारे 6 बजे बच्चा लाइन में लगना पड़ता है, बस की वेट कर रहा होता है। 5:30-6 बजे मैंने देखा है, मैं कई बार ड्यूटी हमारी जल्दी होती है,
मैं जाता हूं तो बच्चे ना, कई बार मैंने बच्चों को सोते हुए देखा स्टैंड पर खड़े। तो क्या आर वी नॉट स्नैचिंग द चाइल्डहुड ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के चिल्ड्रन का जो है ना, उनका जीवन कहीं ना कहीं ये आओ इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी है कि हम सब कुछ उनका बचपन छीन रहे हैं। तो बच्चों को बचपन दीजिए, हम अपना टाइम थोड़ा सा कर्टेल करें, बच्चों को क्वालिटी टाइम दें जिस तरह से आप जुड़ सकते हो। कितने पेरेंट ऐसे हैं कि कभी कोई पेरेंट ने, मान लिया सुबह बच्चा नहीं उठ रहा है और उसको डांट के, पहले तो प्यार से जगाता है, हर कोई पेरेंट पहले प्यार से बोलते हैं बेटा उठ जा स्कूल का टाइम है, पहले 2 बार 3 बार प्यार से होगा। अब मम्मा का वहाँ किचन में कुछ जल भी रहा होता है, खाना बन रहा होता है, नाश्ता बन रहा होता है, पापा की ऑफिस की कुछ और तैयारी चल रही होती हैं, तो लास्ट में क्या होगा, बच्चे के ऊपर फिर फायर होना शुरू होता है, इधर से मम्मी उधर से पापा। क्या मैं किसी पेरेंट से ये पूछना चाहता हूँ, हैव दे एवर ट्राइड टू बी विद देयर चिल्ड्रन या चाइल्ड, कि आप भी उसके क्विल्ट में घुस जाओ भाई, चलो ठीक है आज छुट्टी करते हैं। अब छुट्टी करते हैं तो भाई पूरा बेड़ा गर्क हो गया, भाई उसका स्कूल गया, पापा का ऑफिस गया और मम्मी का रसोई गई। तो बच्चे को आप इस तरह से समझाइए, बेटा देखो तुम तो नहीं उठ रहे हो, मैं आपके साथ आ गया हूँ, हम भी सो जाते हैं, आपका खाना नहीं बनेगा, पापा का ऑफिस नहीं जाएगा। अगर इस तरह से हम कभी जोड़ने की तरह कोशिश करेंगे, उसके सिर पर हाथ फेर के उसको उठाएंगे, तो शायद कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी, बच्चे को लगेगा कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। क्या कोई पेरेंट ये बता सकता है, कभी बच्चा बाहर से खेल के आ रहा है, मान लिया डाइनिंग टेबल सजी हुई है, खेल के आ रहा है बाहर से बच्चा तो एनर्जेटिक होते हैं बच्चे, उनको क्या पड़ी हुई है, मम्मी का खाना बनाने में कितना टाइम लगा हुआ है, पापा और टेबल सजी है डाइनिंग टेबल, उनके लिए हाउ डज इट मैटर फॉर ए चाइल्ड। उसको डाइनिंग टेबल में कुछ भी रखिए, वो आएगा फट से गिरा देगा, जाओ बैठ के आया कुर्सी में बैठते समय गिरा दिया उसने डाइनिंग टेबल से कोई चीज़। कितने पेरेंट में इतनी पेशेंस है कि अगर बच्चे ने वो सब्जी गिरा दी या दाल गिरा दी और बच्चे ने, मम्मी पापा हंस के उसको कहते हैं कोई बात नहीं बेटा। कितने पेरेंट में है ये पेशेंस? कोई हाथ खड़ा करे, कभी इतनी पेशेंस हमने दिखाई है बच्चों के साथ? नहीं दिखा सकते हम लोग। और बच्चे से कहेंगे तुमने आईएएस बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, अरे बनेगा कैसे बच्चा? देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस गिने चुने लोग बनते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 10 या 15 हज़ार लोग होते हैं। आईएएस 1,500 आईएएस पीसीएस में आ जाएंगे, बाकी आपके डॉक्टर उनकी भी हज़ारों में गिनती है। और हमारा 20 लाख बच्चा तो मेरे सीबीएसई में ही बैठता है 10वीं 12वीं में। तो हम कहाँ किधर जा रहे हैं हम लोग? हर बच्चे को आईएएस पीसीएस कहाँ तक बनाएंगे हम लोग? बच्चे की एबिलिटी को खुद समझिए। और बच्चा आपका, जिस पेरेंट ने अपने बच्चे की एबिलिटी को समझ लिया, आप बच्चे की कोई स्ट्रेस को कम कर दिया। आपने बच्चे की एबिलिटी को समझना है, हमने बच्चे की एबिलिटी को समझना है, टीचर ने बच्चे की एबिलिटी को समझना है। और बच्चे की एबिलिटी को समझ लिया कि वो किस लायक है। आईक्यू हर बच्चे का अलग अलग होता है और फेल होने वाला कोई बच्चा नहीं होता, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आपको। तो टीचर की जिम्मेदारी क्या है? कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। अगर कोई टीचर ये कहता है मुझे कि ये बच्चे को नहीं आता, ये शैतानी करता है या ये पढ़ नहीं सकता, तो वो बच्चे की कोई कमी नहीं है, वो टीचर की कमी है। ये क्लियरली आप बात जान लीजिए। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे गुरुजी जो है मुझे ये नहीं बता पा रहे हैं या मेरे गुरुजी को ये नहीं आया, बच्चा हंसी उड़ाने आजकल गूगल से ये करके जाए और टीचर को कहे कि मेरे को ये क्वेश्चन जमा करके ले जाए और टीचर से कहे कि टीचर को सवाल नहीं आया। बच्चों आपको भी मैं एक सीख देना चाहता हूँ। लाइफ में ओबीडियंस सबसे ज़्यादा है, सबसे पहला स्टेप है लाइफ का। इफ़ यू वांट टू लीड इन योर लाइफ यू हैव टू बी ओबीडियंट फर्स्ट। इफ़ यू वांट टू कमांड इन योर लाइफ यू हैव टू बी ओबीडियंट इन योर लाइफ। तो ओबीडियंस से कमांड, ये प्रीकर्सर है ओबीडियंस कमांड का। लीडरशिप का पहला सिद्धांत है कि आपको ओबीडियंस आनी चाहिए। तो जब आप गुरुजी का सम्मान करने लगेंगे, और गुरुजी के लिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये शायद आप लोग, कई लोग मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे। इस दुनिया में बच्चों अगर कोई है अपने माँ बाप के अलावा लाइफ में अपने से ऊपर आपको जाने देखता चाहता है, तो वो सिर्फ गुरु है। इसीलिए गुरु को क्यों पदवी दी गई है भगवान की? वो इसलिए दी गई है कि भगवान
माना गया है इसलिए क्योंकि अपने माँ बाप के अलावा एक गुरु होता है जो उसको अपने से ऊपर देखना चाहता है। तो इसलिए बच्चों को मेरा ये संदेश है, अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखिए। कुछ भी हो सकता है, गुरु को कभी कोई चीज़ हो सकती है, उनका उपहास नहीं करिए, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करिए। ये अगर हमारी वैल्यूज़ अगर इनकलकेट हम कर पाते हैं तो ये हमारे को ज़रूरत है, ये टीचर के लिए ज़रूरत है और ये बच्चों के लिए ज़रूरत है, ये पेरेंट के लिए ज़रूरत है। बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं समझता हूँ मैं 15-20 मिनट तो ले ही चुका हूँ, और भी बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए होंगे, कभी और प्रोग्राम होंगे, लेकिन जो मेन बातें थी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट के लिए और विद्यालय मैनेजमेंट के लिए। देखिए, मैं पहली बार इस विद्यालय में आया हूँ और विद्यालय मैनेजमेंट तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे द इंस्टीट्यूशन इज़ गोइंग, द इंस्टीट्यूशन इज़ बिल्ट, और बाकी इनके रिजल्ट में देख के तो आप कम से कम इतना तो मैं पेरेंट को कह सकता हूँ कि आपके बच्चे, जो मैं इस बात से कहता हूँ, बहुत सारे अवार्ड इस विद्यालय ने मैंने अभी सुना यहाँ पे, बजट स्कूल वो लॉडेबल है। आप एक क्लैपिंग चाहिए उस इंस्टीट्यूशन के लिए, इसके लिए बजट स्कूल का अगर इनको अवार्ड मिला है। और मैंने जो देखा अभी, मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स इनके विद्यालय का देखा है मैंने अभी, अगर बजट स्कूल का इनको अवार्ड मिला है तो दे रियली नीड अप्लॉज। और आप लोग, मैं पेरेंट को कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो गैलेक्सी डिफेंस की है, आपका बच्चा एक बहुत अच्छे हाथों में है, उसका मैं ये अपने जो मैंने आज देखा है, जो मैं रिजल्ट का देखा है, उसके बेस पे कह सकता हूँ। और दूसरी चीज़, वंदना मैडम और ये उनसे पहले जो डायरेक्टर एकेडमिक मैडम है, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है, और आज भी मैं देख रहा हूँ मैडम इतना एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे, उनकी एक्टिविटीज़ हर एक्टिविटीज़ में है। तो वंदना मैडम, मैं आपको बता दूँ, हमारी ये हर सिटी में एक सिटी कोऑर्डिनेटर होता है CBSE का। मैं CBSE का रीजनल हेड हूँ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए। अगले साल से चंडीगढ़ और लेह लद्दाख भी शायद हमारे साथ जुड़ जाएगा, नया रीजन गुड़गांव में खुल रहा है। और हर सिटी में एक सिटी कोऑर्डिनेटर होता है जो ऑन बिहाफ, जो हमारी एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करता है। हम सारे काम सिटी के जितने भी स्कूल्स होते हैं उस सिटी कोऑर्डिनेटर के थ्रू हम ज़्यादा एक्सेस कराते हैं, तो सारे काम करते हैं। तो मैं उसके लिए भी मैडम को बधाई देता हूँ। और मैं आज विद्यालय पहुँचने के बाद मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। पहले मैंने विद्यालय देखा नहीं था, मैंने अपॉइंटमेंट लेटर तो ज़रूर भेज दिया था कि मैं आपको नया सिटी कोऑर्डिनेटर यहाँ से नियुक्त कर रहा हूँ, लेकिन विद्यालय मैंने नहीं देखा हुआ था। बेस्ड ऑन द फीडबैक वी हैव chosen your institution, but I am confident that you will be a very strong arm to the CBSE, और my best wishes to you, my best wishes to everybody। और बहुत सारी बच्चों को शुभकामनाएं। डेट शीट 12वीं और 10वीं की हमने निकाल दी है। 10वीं और 12वीं के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, इस साल हमने कम से कम 26 दिन, नॉर्मली हम क्या है दिसंबर एंड में ये डेट शीट निकालते हैं या दिसंबर के उसमें, इस बार नवंबर में ही डेट शीट निकाल दी गई है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने का मौका मिलेगा, गैप्स आपको मिल जाएंगे, स्टडी का आपको मौका मिलेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी थैंक यू।